और सीधे लिए चलते हैं आपको उदयपुर, जहां पर द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्री सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। Sustaining our forests and empowering our communities. The mighty शिक्षा को गुणवत्तापरक rivers बनाए like जाने the हेतु एवं छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट पर the Narmada नियंत्रण हेतु and the भारत Godavari, सरकार the द्वारा Brahmaputra वित्त पोषित and the Mahanadi विद्या have समीक्षा केंद्र को blessed सुचारू our रूप से land. Recurrence of drought, flood, and cyclones is very common. It's my pleasure to intimate the August gathering that, in addition to being the Chief Minister of Odisha, I hold the change of Minister Water Resources. In this connection, I will speak a few lines on the water resources of Odisha and its development. The state Odisha has a geographical area of 1.55 lakh square kilometer, which is the 8th largest state by area and 11th largest by population. The state is an agrarian one, and almost 50% of the population depends on agriculture. We are thankful to God that we are abundantly blessed with rain to an extent of 1,500 millimeters per year. Climate change has made the quantum and distribution of rainfall more uncertain. Against these odds, we are endeavoring for a water secure state by 2036, when we will be celebrating the centenary of formation of modern Odisha state. To ensure this, we have prioritized flood control and water conservation with multi-purpose projects. At the same time, we are investing in technology-driven water governance through real-time monitoring system and digital dashboards for reservoir management. I wish to inform that we have created storage of about 18 billion cubic meters of water in major, medium and minor irrigation dams. Additionally, we have groundwater resources to the tune of 17 BCM. This makes us a state with rich water development potential. However, this is not enough as the demand from different sectors will rise to 58 BCM by 2047. Government is taking measures for creating of a new water bodies by constructing dams, reservoirs, in-stream storage structure, large tank as well as capacity enhancement in existing storage structures. Odisha's water management initiatives. Our government has taken significant strides in integrated water management. Initiatives such as Pani Panchayat scheme have empowered farmers and formatted participatory irrigation management. Though the mega lift irrigation projects and check dam construction, we have expanded irrigation coverage and ensured water research even in the most remote areas. Focus on climate resilience. However, climate change poses
a serious challenge. Odisha, being prone to cyclones and floods, has learned to build resilience. We are integrating watershed management with afforestation and soil conservation to recharge groundwater. Our women self-help groups are playing a vital role in promoting water-efficient practices and rainwater harvesting at the grassroots levels. More than 40,000 Pani Panchayats are presently active in the state, covering an area of 24.57 lakh hectare of common area and about 45,585 numbers of village water and sanitation committees has been constituted for people's participation in water management. Our efforts under Jal Jeevan Mission focus on Har Ghar Jal, ensuring that every family has a functional tap water connection. In 2019, only 3.5% of rural households had access to tap water connection, whereas we have achieved 76.4% coverage as on today, a quantum leap. In just a few years, we are committed to achieving 100% tap water coverage in rural Odisha by March 2027. Through dedicated efforts, we have prioritized last mile connectivity, ensuring no one is left behind. Access must be clean and safe for consumption. Our goal is to ensure that every rural household receives water that is safe, free from harmful commitments, and meets national quantity standards. We have established 77 fully functional water testing laboratories. Around 94,000 women self-help groups are trained to conduct water quality tests using field test kits. Collaboration and innovation for the future. The challenges of water management are not limited by state boundaries. The management of interstate river basins requires collaborative frameworks between states. I urge all states to adopt a basin-centric approach, one that fosters dialogue, cooperation, and mutual benefit. Furthermore, technological innovations like desalination, smart irrigation, and wastewater recycling must be embraced. I propose the creation of National Water Innovation Hub to promote research and startups working on water conservation technologies. A shared vision. Friends, water is not just a resource, it is a fundamental right, a social equalizer, and a driver of economic growth. Let this conclave be a turning point where we commit to the principles of sustainability, equality, and resilience in water management. Together, let us ensure that every drop counts and that our rivers, lakes, and aquifers remain a source of life for generations to come. Thank you. Thank you very much indeed, sir. We are privileged to have with us today Shri C.R. Patilji, the Honorable Minister for Jal Shakti, whose commitment to ensuring access to clean and safe water for all has been instrumental in driving the transformative initiatives under the National Mission for Clean Ganga and other key programs. Under his able leadership, India continues to make remarkable strides in water conservation, river regeneration, and efficient water resource management. His vision for a sustainable and water-secure future inspires us all to take a collective action. और अब सभा को संबोधित करने और आपके मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री C.R. पाटिल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे श्री C.R. पाटिल जी का।
I'm sorry, sir. ठीक है, सर। इससे पहले कि हम आमंत्रित करें श्री CR पाटिल जी को, प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष जल संचय जन भागीदारी थीम पर आधारित एक थीम सॉन्ग। सदियों से मानव सभ्यता के सभी कालों में केंद्रीय रूप से पानी रहा है। पानी के उपयोग और संचय के आधार पर सभ्यता बनी भी है और विनाश भी हुआ है। जलवायु परिवर्तन की अनिवार्यता देखते हुए जो देश जल संचय एवं अपने नागरिकों के लिए जल आपूर्ति कर पाएगा, वही देश अपनी भावी पीढ़ी को बचा पाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जनता के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के विषय में गहन विचार के बाद जल शक्ति मंत्रालय की नींव रखी तथा बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। साथियों, जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। साल 2024 से कैच द रेन का अभियान जन भागीदारी से जन आंदोलन में कैसे परिवर्तित हो, उसका विचार। Can we present the Jal Sanchay Jan Bhagidari theme song? शुरू हुई है पहल हमारी संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। जल बिन जल जाएगा जीवन, जल बिन जगत अधूरा। जल का संरक्षण संवर्धन करना होगा पूरा। जल का संरक्षण संवर्धन करना होगा पूरा। लेनी होगी जिम्मेदारी, करनी होगी पहरेदारी। शुरू हुई है पहल हमारी जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी। जो मोदी साहब कहते हैं कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। चला देश में जल शक्ति अभियान के चिदारीन। बारिश के पानी को तुम मत होने देना ड्रेन। बारिश के पानी को तुम मत होने देना ड्रेन। कल को ना हो मारा मारी, अभी खेल दो अपनी पारी। शुरू हुई है पहल हमारी जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी। 21वीं सदी में वही देश आगे बढ़ पाएगा जिसके पास उचित जल प्रबंधन होगा। मोदी जी की चाह के जल संसाधन रहे सुरक्षित, इसीलिए भारत के जन जन को करना है शिक्षित। इसीलिए भारत के जन जन को करना है शिक्षित। संकट ना आ जाए भारी, जागो भारत के नर नारी। शुरू हुई है पहल हमारी जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी, जल संचय
संचय जन भागीदारी के इस प्रेरणात्मक संगीत और गीत के पश्चात अब सभा को संबोधित करने और आपके मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार श्री CR पाटिल जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी का। भारत माता की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गण श्री अरुण साव जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री DK शिव कुमार जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी MOS श्री राजभूषण चौधरी जी, मंचासीन सेक्रेटरी श्रीमती देवर्षी मुखर्जी जी, सेक्रेटरी श्री अशोक मीना जी, सर्व उपस्थित मंत्रीगण, करीब करीब 41 मंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, 41 सेक्रेटरी है और करीब 300 लोगों की जो पानी के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं। ऐसे यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, उस विजन को इंडिया 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के उनके मिशन के ऊपर हम काम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन करना नहीं चाहूंगा, और हम लोग क्या करते हैं इसके लिए आपके साथ जरूर बात करेंगे, क्योंकि क्या करना है वो आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हो। अगर हम क्या कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है, उसका पहला मिशन है स्वच्छता। स्वच्छता के आधार पर उन्होंने करीब 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में शौच के लिए जाते थे उनकी आदत में बदल आया और 60 करोड़ लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। और उसके अंदर जो करीब बच्चे बाहर जाते थे डायरिया की वजह से, उनको करीब 3 लाख बच्चों की मौत होती थी, और 3 लाख बच्चों को मौत से रोका गया, ये WHO का रिपोर्ट कह रहा है। और उसके कारण जो महिलाओं को भी अगर शौच क्रिया के लिए जाना है तो अंधेरे की वेट करनी पड़ती थी, कब अंधेरा होगा जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाएगी। उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे और अनेक उनके आरोग्य के प्रश्न भी उसके अंदर आते थे। आज जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, टॉयलेट की बात की, कई लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात लाल किले से कर रहे हैं, मतलब नहीं हुआ। वो काम करना अत्यंत आवश्यक था और पहले ही 5 साल के अंदर वो करीब 100% तक जाने का जो कल्पना थी उसको पूरा किया गया है। मैं आप सबको उसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आप सबने अपने राज्य के अंदर और सभी अधिकारियों ने भी अपनी जवाबदारी में इस काम को बखूबी निभाया और उसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। हमने दावोस में जब ये बात कही कि अपने देश को, भारत को, वो लोग गंदा एक देश मानते थे, यहाँ पर शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस स्वच्छता के लिए जो झुंबेश चलाई, पूरे दुनिया के कोई भी देश ने 12 करोड़ शौचालय का निर्माण न किया है न कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारी आवश्यकता भी बड़ी थी, काम भी बड़ा था, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूर्ण किया है। दूसरा काम जो हमारा मंत्रालय करता है वो जल जीवन मिशन है। 70 साल में करीब हम 37% लोगों को ही पानी उसके घर में नल से जल जा रहा था। उसमें कई राज्यों ने किया होगा, कई लोगों ने खुद किया होगा, मगर महिलाओं को कई किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था।
बोझ उठा के आना पड़ता था और उनको जो पानी मिलता था वो भी शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जल जीवन मिशन की झुंबेश जब पीएम साहब ने शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ लोगों के घरों में अभी ये शुद्ध पानी जल जीवन मिशन के द्वारा दिया जा रहा है। WHO का रिपोर्ट भी इसमें यही कहता है कि इसके अंदर जो 15 करोड़ लोगों के घरों में पानी आया वो शुद्ध पानी आया है। और इस पानी के कारण जो कई फायदे हुए, जो महिलाओं जो उनको 5.5 करोड़ घंटे रोज के पानी के लिए लेने के लिए जाना पड़ता था, बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से वो मुक्ति उनको मिली है। साथ में जो पानी की वजह से सबसे ज्यादा रोग पानी से होते हैं, तो उसके अंदर भी यूनिसेफ कहता है कि 4 लाख मौत आप बचा पाए हैं। ये भी मौतों की कोई कीमत नहीं होती, इसके लिए उसको रुपये में नहीं करेंगे, मगर यूनिसेफ ये भी कहता है कि इसके अंदर करीब करीब 8.4 लाख करोड़ आरोग्य के ऊपर जो लोग खर्च करते थे, स्टेट के सिवा जो लोग अपने अपने फैमिली के लिए खर्च करते थे, वो भी उनके पैसे बचे हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट की साइज देखेंगे तो करीब 9 लाख करोड़ है और 8.5 लाख करोड़ तो इसी के अंदर एक आरोग्य के अंदर ही बचे हैं। और जो 4 लाख बच्चे की मौत बची है वो तो एक विशिष्ट काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो पानी घर में आता है वो कितना शुद्ध है,